मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो आज थोड़ा सा 5 मिनट उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। A इज इक्वल टू AIJM क्रॉस N, B इज इक्वल टू BJKN क्रॉस P, then AB is confirmable for multiplication if number of column of prefactor, that is A, is equal to the number of row of post factor, that is B. If our objective to find AB, then the order of A, just you see here, M cross N, order of B is N cross P. The necessary condition to this equals to this one. So the matrix multiplication is confirmable, otherwise matrix multiplication is not possible. This is the basic definition for multiplication. This is not a simple multiplication like 2 into 3, because in case of matrix, you see most of the problems in which AB is defined but BA is not defined. Suppose in the given example, same standard format, if we want the BA, is it possible? Here the prefactor is B, order of B is N cross P, order of A is M cross N, and just you see here, this is not equal to this one. So P is not equal to M, P is not equal to M. So BA is not possible, but AB is possible. So in the last lecture, when we have completed the lecture, then the matrix multiplication is defined, and this will show. We will see through the example like 1 2 3 2 1 2, and B is 1 2 3 and minus 1 0 1 is 3 cross 2. Okay, so here it is 2 cross 3. So AB, how it will get AB? AB is, first you select the single row and multiplied by the respective column, like 1 into 1, 1 into 1, 2 into 2 plus 3 into 3. Then you will get the first element of the corresponding or the respective matrix. This procedure should be repeated for the second column. So here 1 into minus 1 is minus 1, plus 2 into 0 is 0, plus 3 into 1 is 3. And when the number of columns should be completed, then this procedure should be repeated for the next row. Here it is only 2 rows, so second row multiplied by the column 2 into 1 2, plus 1 into 2 2 3 is 6, minus 2 0 plus 2. So ultimately you will get here 4 9
So this is AB. तो इट्स बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है और क्या आएगा हमें पहले ही पता लग जाएगा। देखिए ऑर्डर ऑफ A 2 क्रॉस 3 है, ऑर्डर ऑफ B 3 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों बराबर हैं, लिहाजा जो आने वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। एंड दिस विल गेट थ्रू दिस प्रोसेस। अगर अब हम इसी में चाहें कि क्या BA संभव है, तब आप देखेंगे कि इस केस में BA संभव नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 और A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। यस, इस केस में संभव है। ये देखिए 2 इज इक्वल टू 2 बराबर हो गया और आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा। उसको भी करके देखते हैं। आपको यहां पता लगेगा कि दोनों का रेक्टेंगुलर ऑर्डर था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में AB और BA दोनों निकाला जा सकता है। यहां पर 1 2 3 -1 0 1, this is B, and A is 1 2 3 and this is 2 1 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू BA, सो BA इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड किया फर्स्ट रो इस कॉलम से, तो 1 इंटू 1 -1 इंटू 2 2, फिर इसके बाद 1 इंटू 2 -1 एंड अगेन इज 3 -2। फिर नेक्स्ट देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 0 4 0 6 0, और दिस प्रोसीजर शुड फॉर द थर्ड कॉलम और थर्ड रो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 6 प्लस 1 9 प्लस 6, ये आ गया 3 क्रॉस 3, और BA इज इक्वल टू आ गया -1 1 1 2 4 6 5 7 15। तो इस तरीके से जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया, उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि AB और BA दोनों ही संभव है और दोनों का मान देखिए अलग अलग आ रहा है। AB का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, BA का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। तो दोनों ही अलग अलग मैट्रिक्स हैं, बट दोनों केस में, इस पर्टिकुलर केस में दोनों में मल्टीप्लिकेशन संभव है। कई जगह आप देखेंगे कि जहां पर AB निकाला जा सकता है पर BA नहीं निकाला जा सकता, या BA निकाला जा सकता है AB नहीं निकाला जा सकता। अगर स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है, इफ A be a square order, A and B be the square matrix of the same order, like order of A is 3 cross 3 and order of B is again 3 cross 3. In that case, here AB and BA both confirmable, उस केस में AB और BA दोनों निकाला जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास इस पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के लिए जहां पर स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है, AB और BA दोनों संभव है। अब इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद इसी में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर A
मैंने आपसे बताया कि स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उस केस में ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हैं। तो पॉसिबल मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए इज ए आई जे एन क्रॉस एन। सो दिस इज द स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स। नाउ a into a is a square into a is a cube into a is a to the power 4 and so on, and this will get any number of m, whatever be the number. So this can be possible, this can be done. The reason behind it, this is the square order matrix. In the square order matrix, order of A is n cross A, order of A cross A is square, n cross n, then order of A square is again n cross n. So any number of times when we multiply the matrix, then this will get the multiple integer. Multiple integer means this one, A to the power n, m be the whatever be the number. So we will get here the respective multiplication of the matrix A any number of times. So this is the multiple integral, positive integral power of A. We can use in the lot of examples in which we multiply. Just you heard about the binary operations, or binary operations mean operation which defined for multiplication, addition, whatever. But in this case, in matrix case, बार बार आपसे बता रहा हूं कि मैट्रिक्स के केस में जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए, नंबर के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, जैसा आपने पढ़ रखा है कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे एडिशन के केस में आपको हमने बताया था कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, बस नेसेसरी कंडीशन ये है कि a और b जो है वो कंफर्मेबल हो फॉर एडिशन ऑपरेशन फॉर द सेम स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स, या a और b का ऑर्डर बराबर हो तभी उनको एडिशन के लिए कंफर्म किया जा सकता है। अगर a और b c एडिशन के लिए कंफर्म है तो वहां पर हमने आपको बताया था कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में ये सारे लॉज सिर्फ होल्ड करते हैं अगर a b c सेम स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज हमारे ये लॉस जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड नहीं करते। अब एक क्वेश्चन है जो कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर फॉर्म में है, a टू द पावर a इज इक्वल टू 3 minus 4, 1 minus 1, prove that a to the power k is equal to 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k। क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा समझिएगा। a बराबर इतना दिया है तो आपको प्रूफ करना है कि a की पावर k बराबर इतना होगा। इसका डेरिवेशन वी विल गेट थ्रू दी यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में आप लोगों को पता है, लेट अस बी कंसीडर k इज इक्वल टू 1, सो a टू द पावर 1 रख के देखें तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 एंड यू विल गेट हियर 2 प्लस 1 3
दिस इज -4, 1, -1. तो यस, दिस इज गिवन दैट इन द क्वेश्चन a to the power 1 is equals to this one. That means we can say that it is true for k is equal to 1. k बराबर 1 के लिए ये सही है. अब हम देखेंगे क्या यह k बराबर 2 के लिए भी सही है. तो k बराबर 2 में k बराबर 2 रखिए, जो दिया हुआ हमारे पास. जब इसमें रखेंगे तो 1 + 2 × 2 -4 × 2 2 1 - 2 × 2. जब इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 1 5 -8 2 1 - 4 is -3. अब देखें, ये तो एक मेथड से निकला. जब हमने k बराबर 2 निकाला उसकी ये वैल्यू आई. अब हम देखेंगे जो a दिया हुआ है, अभी आपको मल्टीपल इंटीजर बताया था, a² बराबर a × a फॉर सेम स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स. तो यहां पर a बराबर 3 - 4 1 - 1 3 - 4 1 - 1 मल्टीप्लाई करिए. 3 3 जा 9 -4 is 5 -12 plus 4 3 - 1 4 -4 plus 1 -3. So this is 5 -8 4 -3. Yes, 3 - 1 is 2. सॉरी, यहां पर 2 आएगा. तो ये देखें, ये इसके बराबर है. इसका मतलब ये k बराबर 2 के लिए सही है. अगर देखें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड ये कहता है कि ये k बराबर 1 के लिए सही है, k बराबर 2 के लिए सही है, तो लेट वी अज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू a to the power m is 1 + 2m - 4m m 1 - 2m. ये हमारा एजम्पशन है, ये आया नहीं है. ये हमने माना है कि ये m के लिए सही होगा. तो अब हम देखेंगे कि क्या ये m + 1 के लिए भी सही है. अगर जैसा सोच रहे हैं हम, तो a की पावर m + 1 बराबर a to the power m into a की वैल्यू 3 - 4 1 - 1 मल्टीप्लाई करिए. यह आ गया 3 + 6m - 4m -4 - 8m plus 4m 3m plus 1 - 2m -4m -1 plus 2m. ये आ गया. एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 + 2m -4 कॉमन लें अगर, तो यहां से m + 1. दिस इज m + 1. दिस इज माइनस कॉमन ले तो 1 + 2m. तो यहां देखें, उस फॉर्म में रख के देखें जो दिया हुआ है. ये 1 + 2 × m + 1 -4 × m + 1 एग्जैक्टली ये आना चाहिए. m + 1 1 - 2 × m + 1 जो हमारे पास रिजल्ट आया है, हम देखें क्या उसको लिख के रख सकते हैं. यस, 2m + 3 ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. 2m + 3 -4m + 1 एज इट इज, m + 1 एज इट इज. इसको देखें, -2m - 1 -2m -2 + 1 is -2m - 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये k बराबर m के लिए सही है, तो k बराबर m + 1 के लिए भी सही होगा. Hence it is true for
एवरी वैल्यू ऑफ k। इससे सिद्ध हो गया कि ये k के किसी भी प्रत्येक मान के लिए सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पे कोई अननोन मल्टीपल पावर आपको दिखानी है कि सिद्ध करिए कि ये इसके बराबर है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ही प्रोसेस करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखिए क्वेश्चन ये है A इज इक्वल टू, पहले ऊपर लिखें, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस A is equals to this one and B is equal to cos square phi cos phi sin phi. This is cos phi sin phi sin square phi. Product of two matrices is a zero matrix when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2. When theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2, ये दिया हुआ है। देखिए थीटा एंड फाई, थीटा माइनस फाई डिफर बाय, डिफरेंस है किसका, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये रहा पाई बाई 2, ऑड नंबर आप जानते हैं, तो ये आया 2n + 1 पाई बाई 2। अगर ऐसा है तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें सिद्ध करना है कि जीरो मैट्रिक्स होगा। देखते हैं करके, प्रोडक्ट करें ए बी, ए इंटू बी एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। नेक्स्ट कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसमें आगे देखें ए बी इज इक्वल टू, अगर इसमें हम कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन निकाल लें तो ये आ रहा है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। इसमें हमने साइन फाई कॉमन निकाला, कॉस थीटा निकाला, तो ये आ रहा है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। और इसमें देखें, इसमें कॉस फाई साइन थीटा देखें तो कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और इसमें साइन थीटा साइन फाई ये बराबर आया कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जिसको हमने कॉमन लेके इस फॉर्म में लिखा। देखें अगर गौर करके, चारों में ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। तो यहां से ये लिखा जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ये आएगा कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा माइनस फाई, और ये आया साइन फाई कॉस थीटा माइनस फाई, और इसी तरीके से साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा माइनस फाई, और ये आ गया साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा माइनस फाई।
अब यहां देखिए जो दिया हुआ है, थीटा माइनस फाई डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दोनों तरफ कॉस ले ले, कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, कॉस 90 बराबर 0, कॉस पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, ऑल इज इक्वल टू 0। वो इसमें रखे, इसकी वैल्यू 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, अल्टीमेटली हमारे पास ए बी बराबर आया 0 0 0 0। तो यही इसमें सिद्ध करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स in the condition given that theta minus phi differ by odd multiple of pi by 2। तो आज के लिए इतना, कहीं कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से आपको DHA मिलेगा।